speak further. All right, who is coming first? Who is coming? Who is going to present what? As I told you, the parameters on the basis of which we are going to judge you. I mean, the rubrics I have already shared with all of you. Now, who is presenting first? Hurry up, hurry up. Don't waste your time. Already it is 10:30. Yes? Riddhima, Yes, ma'am. would you like to start first? Ma'am, please don't give, please give me 2 minutes. I'll just read my again. I read again. No, sure. My Navdha, are you coming? Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. 1 minute. Okay. Ma'am, can I start now? Sure, sure. Most welcome. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड जय जिनेन्द्र। मैं आपकी दोस्त होस्ट नवधा आज सुनाने जा रही हूँ बेहतरीन गाने, वो भी सिर्फ फीवर एफएम पर 99.4। तो आज सुनते हैं हम लोग रोमांटिक गाने। जो दिल से लगे उसे कह दो आए 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 आए, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, ये तो मुस्कुरा को आए आए आए, जाने दो दिल से चले जाने दो, ये तो घबराने को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी। So, ये था हमारा गाना। और आपको पता है इसके डायरेक्टर कौन थे? नहीं। आपको पता है ये गाना किसने बनाया था? अमित त्रिवेदी ने। और ये गाना और ये मूवी 2016 में बनी थी। तो चलते हैं अपना आगे का गाना सुनते हैं। तो ये आप एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं इसके बारे में। ये जो गाना है लव यू जिंदगी, वो ये जो पिक्चर है जिसमें ये गाना है उसका नाम भी लव यू जिंदगी ही है। तो अपना फिर से स्टार्ट करते हैं गाना। कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है। ये था हमारा गाना आज का। मैं मिलती हूँ आपको थोड़े से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर। Very nice, Navdha. Wonderful, excellent job. Can we give a big round of applause to Navdha? Everyone, can you clap your hands? Clap your hands at least. Most welcome, Navdha. Most welcome. Now, who is coming next? Quickly. Ma'am, what is my marks? I'll tell you. It's a competition. You will be given marks at the end, right? We'll announce the result later on. All right, who is coming next? Where is Riddhima? Riddhima, are you there? Utkarsh? Yes, ma'am. Utkarsh, would you like to present anything?
Yes, ma'am. Proceed. Carry on, please. Good morning, India. Utkarsh, Wonderful. switch on your camera, beta. Switch on your camera. Good morning, India. This is Utkarsh Baghel from 98.5 FM, Radio Mirchi. डॉक्टर ने मरीज से कहा, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले वादा करो कि आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके वादा। मरीज ने अपनी गन्ने जितनी पतली टांगें दिखाई। डॉक्टर को यह देख के हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, तकलीफ कुछ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब, ये टांगें सूज गई हैं। डॉक्टर, हा हा हा, भाग जाओ, वो बेवकूफ, तू तो आया ही हंसाने के लिए है। मैंने सुना दिया। Excellent job, Utkarsh. Wonderful. Can we give a big round of applause to Utkarsh as well? Can we clap for him? Everyone, clap your hands. Wonderful. Excellent job. Who's coming next? Next contestant, Nikunj. No, ma'am, not prepared now. कोई बात नहीं, it's okay. Yes, ma'am. It's okay. नहीं प्रिपेयर है, कोई बात नहीं. At least you try. कि उत्कर्ष ने कितना अच्छा बोला है ना. I just want to know your age groups as well. Okay, Navda, you are 9 years if I'm not wrong. Utkarsh, what about you? What is your age? मैम 10 years. 10 years. You are in Yes, 6th standard or ma'am. 5th? You are in 5th or 6th? Utkarsh? मैम 5th. 5th. Okay. All right. Who's coming next? Divya? Divya, would you like to try? Ma'am, I am 9 years old. It's okay. Divya Verma, Yes, ma'am. would you like to try? Hurry up. At least try. No. Varun Kumar. Varun. Would you like to present Ma'am. something? Okay, ma'am. Come on. Start presenting whatever you want to present. Hello, India. Excellent, I am Varun. Excellent. Hello, India. I am Varun. My age is 10 years old, and she has two children. They have a house in the jungle. The goats go in the evening and eat some grass and milk her children. When she goes to eat grass, she always locks the door of her house because of the scareness of her child to eat that she thinks that the wild animals will eat her children. So one day when the goat was coming in her house, so
she says something that like chunnu kholo na diwar, munnu kholo na diwar. The when the wolf listened it, he thinks that what is that thing? What she says? Then the other day the wolf comes and hide behind her house. And when the goat says that word, the wolf says, "This is that the thing that the goat says." So when the goat goes to the eating grass, then the wolf comes and says the word in very loud voice, like "Chunnu kholo na diwar, munnu kholo na diwar." So when the children hear this, then they were thinking, why mom comes so early? She has not liked this voice. When then the other child says, this is gonna be mom. So when they open the door, then the wolf comes in and eat the children. When the goat comes early in the evening, then then she sees that the door is opened and the children is not there. So when she finds in the whole jungle, but she did not see her children. When she goes on the riverside, she sees that the wolf is laying down on behind the tree. His his stomach is very big. Then she was thinking that the wolf has eaten my children. And then she goes to the a milkman. Then she says, "You can take my all milk and make my head like iron." Then she take then she then the milkman take the all milk of her, and then she make the head of her a steel. A steel of light. Done? Then when she Excellent. Excellent job. Is it done or still there? goes to the riverside, the wolf was only laying down Hmm. on the ground. When she goes to the wolf and says, "Why you eat my children?" And then she put her, "No ma'am, no ma'am, there's more. No ma'am, there's more. Ma'am, sleep there." Then she says, I will cheer your stomach and take my children off." Then she cheer off his stomach, and then she takes her children to her home. Thank you, India. Welcome. Excellent. Excellent job. Wonderful. Ma'am, it's done. Done. Now it is done. Wonderful. You are a very good story creator. At the same time, you have created a story and you told to everyone. Wonderful. Excellent. Excellent. Excellent job, you, ma'am. Varun. You have done great job today. All right. Now we have a special guest in our meeting. जो आपने expect भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है. So I want to introduce with one of the special guests which we have invited today. His name is Mr. Gaurav Grover. Hi Gaurav, how are you? Hi Gaurav. Hi Anjali, I'm good. Am I audible? Great. Yes, yes. Gaurav, can you please switch on your camera? People are thrilled to see you. I tell you why Gaurav is so special for us.
Gaurav is multi-talented personality. He is an actor, director, panel jury, and he has done tremendous lots of jobs in the media, in the field of media. And he's the owner and he's an entrepreneur as well of arts work. So let's listen from Gaurav himself. Hi Gaurav, welcome to the Hi, school hi, and hi, welcome hi. to this grand finale of RJ Hunt from Mount Litra School. Just a moment. Yeah, hi. I'm sorry. So, Hello Gaurav, very yeah, warm hi, hi, hi. welcome. Thank you, thank you. So, Navda, I heard you. You are a very good orator. Thank you, sir. Yeah, yeah, Anjali. You want me Gaurav, to can say you please something? tell me? Yeah. Can you I please thought tell there is us something all, left from tell your all of side. us about yourself? Ah, first of all, everyone can switch on your camera. Will you? All of you. The one who are available. Utkarsh Baghel, Varun Kumar, Riddhima Maheshwari. Can you? Hmm. Okay. Varun, Riddhima, Utkarsh, and there is one Dhruv 10C. Okay. So, let's not give my whole introduction. But मेरा नाम गौरव ग्रोवर है and I am a actor, director and as well as a casting director. And मैं जो करता हूँ वो भी बताने के लिए इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आज हम किसी मोटिव से मिले हैं. You are on the completion of one workshop, radio jockey workshop with super talented Anjali Dhar ma'am. So she is from she is having a very great experience in the radio, journalism and teaching as well. That as far as I know. Am I right, Anjali? Sure. Thank you so much for your हाँ kind words. नहीं काइंड नहीं मतलब these are real words. तो थोड़ा सा बातचीत कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि नहीं होता. सबसे पहले मुझे आप लोग एक बार ये बताएंगे कि आप लोगों ने ये वर्कशॉप 9 days करी. व्हाट हैव यू मतलब गेन्ड आउट ऑफ इट वन बाय वन थोड़ा सा बात कर लें. कैन एनी वन ऑफ यू? नवदा. हाँ सर, मुझे पहले पता नहीं था कि न्यूज़ रीडिंग क्या होता है और न्यूज़ की फुल फॉर्म सो मैम ने वो बताया है. और हम लोग ने इतने दिन में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है. अच्छा आप लोगों ने वीडियो भी बनाया. मतलब आई थॉट कि इट्स जस्ट अ रेडियो जॉकी वर्कशॉप. यस, लाइक रेडियो जॉकी में स्टोरीज टेलिंग करते हैं और लाइक ड्रामा करते हैं क्रिएट. ऐसे हम लोग को अलग अलग डे पे हम लोग अलग अलग टॉपिक करते हैं. तो कल हमारा ऑल ओवर कंपटीशन आज था बट मैम ने कहा था कि आज भी कल भी प्रैक्टिस करना. गुड. एनीवन एल्स? उत्कर्ष, Varun. Sir, that how radio jockey works and like how confidence we have to build in radio jockey and how to talk with our listeners and talk to them with free free time free. अच्छा हमारे पास रेडियो जॉकी आज एक ही है क्या? वी हैव ओनली नवदा. नोबडी एल्स इज स्पीकिंग. रिद्धिमा महेश्वरी.
You have been there in the class for last 9 days. मैं थोड़ा सा जरा जानना चाहता हूँ because जो स्पेशल गेस्ट होते हैं ना, they are like zombies. They don't understand कि हो क्या रहा था, तो उनको पता चलना चाहिए ना what all is happening. थोड़ा सा प्रेजेंट करें, बताएं. Yes, sir. In that class, we learn a lot about it. How to. अच्छा, there is no problem with the communication in whichever language you are comfortable. You can speak out. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपकी कंफर्टेबल हो उसमें बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सर हमने काफी कुछ सीखा है मैम से, हाउ टू जस्ट रीड द न्यूज़ एंड वी मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड हाउ टू मतलब स्टोरी टेलिंग सीखी है एंड काफी कुछ सर रेडियो में कैसे क्या हुआ जाता है, कैसे हमें न्यूज़ रीडिंग की शुरुआत करनी चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए हर चीज से पहले. सर काफी कुछ मैम ने हमें स्पीच बताई है कोरोना वायरस के ऊपर. अच्छा, ओके. वरुण बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहे थे. कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग? सर अबाउट Varun. स्टोरी. Yes, sir. हाँ. Today I prepare a story also. Okay. Who said this? Varun, na? Yes, sir. Okay. So Varun, what have you learned, यार? Come on. मैं सबका देख नहीं पाया ना. Sir, the time was very cheerful. Sir, the day was fast, very good. Then I learned many things like storytelling, radio jockeying, how we speak, our introduction, such as things, etc. I really like radio jockeying now. I really don't know about radio jockeying after, and then I learned after that radio jockeying. अच्छा, आप लोग सबके सब वैसे रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं क्योंकि सबके कैमराज ऑफ है, तो रेडियो जॉकी बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं. एंड आई एम अ पर्सन हु वर्क्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट? तो एक बार अगर कैमरा ऑन करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी नजर आ जाएंगे ना. हाँ जी, बाकी सब चलिए, कोई बात नहीं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तो सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों, जरूरी क्या है? मतलब मेरे को आप रेडियो जॉकी या एज अ प्रेजेंटर, किसी भी तरह के प्रेजेंटर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंटर्स. लाइक आप न्यूज एंकर होते हैं, आप एक कमर्शियल एंकर होते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, या आप लाइव एमसीज होते हैं. एमसीज आर मास्टर्स ऑफ सेरेमनी. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड ऑलवेज बी? मतलब उसके बारे में वन लाइनर, मुझे वन लाइनर बताएंगे, फिर मैं थोड़ी सी चीज पूछूंगा. वन लाइनर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बी अ रेडियो जॉकी और टू बी एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटर? रेडियो जॉकीज आर जे, एंड जो लाइव करते हैं इवेंट्स के अंदर, दे आर कॉल्ड एमसीज, मास्टर्स ऑफ सेरेमनीज. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इम्प्रॉम्प्टू, जो भी दिमाग में आए, स्पीक आउट योर माइंड. Sir, how we talk? Anyone? Yeah, Varun. Sir, this depends on how we talk. I didn't get your voice. Come again. Sir, can you repeat your question? Sir, I think it depends on how we talk. How we talk? नहीं, how we talk is okay. We talk every day. मतलब कम्युनिकेशन हम लोगों की जिंदगी में सबके है. हमें भाषा मिली है, हमें स्क्रिप्चर्स मिले हैं, हमें साइंस मिले हैं, हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? टू बी अ रेडियो जॉकी, टू बी अ प्रेजेंटर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? वन लाइनर, कुछ भी, मतलब क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? या रिद्धिमा? Sir, confidence. Sir, confidence. Okay, one liner, confidence. Anyone else? सर वी नीड आवर वॉल्यूम. सर हमारी वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए और हम जो अपने थॉट्स जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रेडियो में, वो भी हमारे फीलिंग्स है उसे भी एक्सप्रेस करना चाहिए. एंड सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होना चाहिए. आपने कॉन्फिडेंस को ही एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बताया. वेरी गुड, यू हैव ट्राइड इट, एटलीस्ट यू हैव स्पीकन आउट. हेलो, और एनीबॉडी एल्स? या यस हम्म सर, आप
आई एम रियली सॉरी नवदा, आवाज थोड़ी थोड़ी ना खराब आ रही है. इज देयर एनी इशू विद योर नेटवर्क? No, sir. Our content Yeah. should be true. Our content should be True. true. Yes. True. Okay. Yes. Okay. One thing is content. Another thing? सर के लिए इंटरेस्ट भी जरूरी है. क्या चीज उत्कर्ष, मेरे को फिर समझ नहीं आया. आई एम रियली सॉरी. इंटरेस्ट. Acha, I'm sorry to interrupt you in the middle. Because this is a kind of competition. और कोई बच्चा है who is left, who is unattended, who want to present any kind of program? और कोई है जो आप में से प्रेजेंट करना चाहता, अभी तक नहीं किया है किसी ने? रिद्धिमा? Yes, ma'am. I want to tell a story. Can we start with that? Can we proceed with the same? Sorry, ma'am. What? आप स्टार्ट कीजिए फटाफट से. We'll come back to Gaurav again. Okay. Please, Riddhima, carry on. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट रिद्धि माहेश्वरी आपके साथ एक कहानी की स्टोरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ. टॉपिक मन का सूरज डूबने ना दे. एक राजा था जो बहुत ही शौकीन किस्म के थे और उनके बारे में ये जाना जाता था कि जो चीजें उनकी हैं वो बहुत ही उसका ख्याल और संभाल कर रखते थे. एक बार उन राजा से मिलने कोई दूसरे देश के या दूसरे राज्य के राजा आए और तोहफे में 2 बाज के पक्षी लाए. राजा ने यह देखा और राजा बहुत ही खुश हुए और उस बाज के जो पक्षी जो लाए थे राज्य से एक दूसरे राज्य के राजा, उन्होंने बोला ये बाज के पक्षी कोई साधारण नहीं है. ये बाज के पक्षी बहुत ही रेयर और बहुत ही उम्दा नस्ल के हैं जो आसानी से पाए नहीं जाते. राजा इस तोहफे को पाकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने खास एक व्यक्ति को रखा इस काम के लिए जो उन बाज के बच्चों की देखभाल कर सके और उन्हें बड़ा करने में मदद करे, ग्रो करने में मदद करे. राजा ने एक बार सोचा कि अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे, उड़ान भरने लग गए होंगे, तो चलो क्यों ना उनसे मिलकर आता हूँ. राजा जी उस जगह पर पहुंचे और उस व्यक्ति से मिले और उनसे पूछा बाज के बच्चों कैसे हैं बाज के बच्चे. तो उन्होंने कहा, राजा जी ने कहा कि इन बच्चों से इंस्ट्रक्ट करो या उन्हें कहो कि वह उड़ान भरकर दिखाएं. तो वह जो पहरेदार था जो उनकी ग्रो करने में मदद कर रहा था, उन्होंने जो है उन पक्षियों को इंस्ट्रक्ट किया. तो एक पक्षी तो बहुत ही ऊंची उड़ान भर रहा था, वह दूसरा पक्षी उड़ता तो फिर डाल पे बैठ जाता, फिर उड़ता तो फिर डाल पे बैठ जाता, वह उड़ान नहीं भर पा रहा था. यह देख के राजा बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने अपने राज्य में अनाउंस किया कि जो इस बाज के बच्चे को उड़ना सिखाएगा, मैं उसका घर सोने चांदी से वह उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा. तो सब आए, सबने कोशिश की पर कोई उसे उड़ाना सिखा ना पाया. एक किसान आया और उसने Riddhima, wait, Riddhima, just switch on your camera. Once you are speaking, switch on your camera, please. Okay? Okay. तो मैम Now you को can आया. speak. तो मैम तो फिर सबने ट्राई किया मतलब पर कोई भी सफल नहीं हो पाया, सब असफल रहे. तो फिर एक किसान आया जो बहुत ही गरीब सा था, कुछ नहीं कर पाता था. तो उसने उसे उस पक्षी को उड़ना सिखा दिया. तो वो जो पहरेदार जो उस पक्षियों की देखभाल कर रहा था, वह राजा के पास गया और राजा को बताया कि एक किसान ने उस पक्षी को मतलब उस बच्चे को उड़ना सिखा दिया. तो राजा अति प्रसन्न हुए. तो वह गए उस पक्षी को देखने और उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो सच में उड़ना सीख गए हैं. तो उस किसान से जो राजा है उन्होंने पूछा यह तुमने कैसे किया और उसे खूब सारा इनाम दिया. तो फिर उस किसान ने बताया, मैं तो ठहरा गरीब आदमी, ना मेरे पास कुछ है, ना मुझे शिक्षा आती है, ना मुझे विद्या. तो फिर उसने बोला कि मैंने तो उसको जो उड़ के डाल पे बैठ जाता था वह डाल ही काट दी.
तो वो ऊंची उड़ान भरने लग गया। तो फिर इससे ये हमें शिक्षा मिलती है या इससे ये समझने को मिलता है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए। Excellent, excellent, wonderful. Can we clap for Riddhima? Everyone, clap for Riddhima. Wonderful. Excellent initiative, Riddhima. Very good, very good, very good practice you have done. Okay, now we'll come back to Gaurav once again. Yes, Gaurav, can you hear me? Yeah, and Please, as please, I'm I'm so getting sorry to actually late, interrupt in the तो middle. मैं नहीं it's okay हाँ. बच्चों का presentation था तो that is more important। तो सबसे ज्यादा important बच्चों क्या है आप लोगों के लिए whenever you present is, जैसे एक ने बोला confidence, well and good, focus, it is very important, लेकिन ये सब आता कहाँ से है, आता किस तरह से? ये सब आता है कंसंट्रेशन से। और कोई भी अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप लोगों को ये जाननी है कि यू हैव टू बी रियल। आप जो है ना जैसे हैं वैसे प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे एक दो बच्चों को मैं एज अ रेडियो जॉकी करते हुए देख रहा था, हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं जितने भी, मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स अक्रॉस दी मतलब रेडियोज, अलग अलग स्टेशन में, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली। तो उतने में से जितने ने भी अपना मार्क बनाया लाइफ के अंदर, वो सब वो लोग थे जिन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट और ओरिजिनल स्टाइल, स्टाइलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी करते हैं उसके लिए हमारा स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बहुत जरूरी है। और जैसे नवधा ने बोला था कि कंटेंट, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंटेंट आपका क्या है, कनेक्ट बनाता है आपका ऑडियंस के साथ। जैसे कि मैम आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटर है तो आप उनके ऑडियंस हैं, अगर मैम आप कनेक्ट बना पाती हैं तो वो कम्युनिकेशन यानी कि ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी वेरिएशन ऑफ स्पीच, उनकी वेरिएशन कितनी खूबसूरत है, वो कितने अच्छे से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर उनको हाई पिच लेकर के जानी है, कहाँ पर उनको लो पिच लेकर के जानी है, और कहाँ पर उनको मीडियम पिच पर बात करनी है। सो वॉल्यूम नहीं, जैसे रिद्धिमा ने बताया था, इट इज जस्ट नॉट अबाउट वॉल्यूम। एक्सप्रेसिव होने के लिए हमेशा कम्युनिकेशन ब्यूटीफुल होना बहुत जरूरी है, या आप किसी भी तरह के प्रेजेंटर बने इन लाइफ। मैं बेसिकली एक्टिंग लाइन से आदमी हूँ, आई गिव ड्रामा टीचिंग, मैं बच्चों की कास्टिंग कराता हूँ, बहुत सारे बच्चों को फिल्मों में और बहुत सारी जगहों पर मैं वो काम दिलवाता हूँ। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जो बच्चों के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस लेवल कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम से किसी बच्चे के अंदर इनकलकेट हो जाता है, ये तब आता है व्हेन यू आर एक्चुअली कन्विंस्ड व्हाटएवर यू आर परफॉर्मिंग। जो भी आप बोल रहे हैं आप उससे पूरी तरह कन्विंस हैं। तो ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा जल्दी थी, एंड आई एम रियली सॉरी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैम ने बताया था कि यू गाइस हैव अनदर क्लास, इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्योंकि मैं ऐसे बात करने लगूंगा तो इट विल टेक, मतलब टिल इवनिंग मैं बात करता जाऊंगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सो लेट्स कम टू द एनी क्वेश्चन इफ यू गाइस हैव। क्योंकि 9 डेज तो आप मैम के साथ थे, आपको एक आज कोई एक नया एक किरदार, एक कैरेक्टर, एक आपको मिल रहा है, पात्र मिल रहा है, तो आप उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन वेरी वेल आस्क। आप लोग सवाल बहुत कम करते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सवाल करना सीखें। क्यों अंजलि मैम? Absolutely correct. ये बच्चे थोड़ा शाय फील करते हैं, क्योंकि They are किसी भी little bit चीज को shy, अचीव yeah. करने के लिए फर्स्ट स्टेप होना Hesitant. बहुत जरूरी है कि मैं पूछूंगा तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा। बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्लासेस जो अंजलि मैम आपकी ले रही हैं, यहाँ पर कोई आपको जज करने के लिए नहीं बैठा। आपका कॉम्पिटिशन है, दैट इज काइंड ऑफ अ जजमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई जज करने नहीं बैठा कि आपने क्या बेहतर करा, क्या बुरा करा। ट्राई इट। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो, क्योंकि क्वेश्चन आने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन जाता है और वो हमारे फेस पे भी नजर आना शुरू होता है। नवदा, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है क्या बेटा? नो सर। Okay. Anyone else? चलिए, no issues. हाँ, I think it is time now. Thank you so much, Gaurav, to give your precious time. But a very nice initiative. कोविड टाइम में ऐसा नहीं, I'm very appreciative that you invited me. कोविड टाइम में इस तरह की चीजें करना, when we have so much of stress, the world is going through so much of stress. तो हमें एक happy side of life, एक happy breathing space देती हैं इस तरह की एक्टिविटीज, जहाँ पर हम नए नए किरदारों को, नए नए पात्रों को और नए नए तरीके की चीजों से मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं। And art is the only way we can arrive at truth.
तो ये एक बहुत ही फेमस लाइन है. एंड आई कंप्लीट माई वर्ड्स बाय हियर बिकॉज आप लोग भी लेट हो जाएंगे और मैम को भी आपका जजमेंट अनाउंस करना होगा. तो आई टेक अ लीव. बाकी फिर भी कोई सवाल हो आप लोगों के दिमाग में regarding any kind of performative activity, so just put down a query to ma'am. जो मैम सॉल्व करना चाहेंगी वो बताएंगी और जो मेरे लायक होगा मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा. So is it? Thank you so मैम much, इजाजत? Gaurav. Thank you so much. We are blessed and honored that you have given your precious ऐसा time कुछ today. नहीं है. इतना precious time आपने निकाला because I know you are so busy person. 24/7 you are occupied. नहीं देखो ऐसा है, आर्ट हम लोग अपने खुद के लिए करते हैं. बिजी होना वो एक प्रोफेशन है, बट जब हम आर्टिस्ट हैं तो वो हम खुद के लिए करते हैं. कुछ भी करते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारा काम करते हैं. तो इट्स लाइक एक लाइकिंग, हमारी चॉइस है. तो उसके अंदर कोई वो नहीं. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू गाइस. नवदा, Most गॉड welcome. ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू. रिद्धिमा, वेरी गुड स्टोरी टेलिंग. बस थोड़ा सा शब्दों का जो चयन है ना, बीच में बायलिंगुअल करना हो तो ट्राई करता था और फिर वो आखिर में पहुंचता था. तो थोड़ा इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करने के लिए थोड़ा ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है स्टोरी में. बाकी इट वाज अ गुड स्टोरी टेलिंग. उत्कर्ष, नवदा, गॉड ब्लेस यू ऑल. चलिए, see you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. चलिए students, I'll declare the result later on. Within a week time, you will get your results, okay? And you will get your certificates as well. Those who have participated in this particular course, they will get participation certificate, and those who have participated in the contest, like the grand finale, they will get certificate for the positions as well, okay? So all the best to all of you, and today Gaurav has given lots of good advices and knowledge to us, which was really beneficial. And I'm sure ये जो knowledge आपको मिली है यहाँ से, ये आपकी पूरी life में काम आएगी. And may God bless all of you. And keep in touch. Stay tuned with us. Okay, stay tuned with me especially. Today is the last day, and it was really wonderful to be with all of you. I'm really thankful to Principal Sir, Director Sir. Who's this? I'm really blessed and I'm really honored of the director, sir, Mr. Deepak Gupta, who invited me for this particular occasion and given me an opportunity and chance to, provide knowledge to all the students. And I'm equally, thankful and humbled with gratitude to Principal Sir, all the students, parents, and whole school of Mount Letra Z School Kasganj. May God bless you, all of you, and keep in touch. Okay, so see you Thank you, ma'am. for again your very knowledge. soon. Till then, ciao and take care. May God bless all of you. Take care of yourself. Stay healthy, stay fit. Thank you so Thank much. you, ma'am. Bye, ma'am. It was wonderful Bye, experience ma'am. to be with you. Ciao. Bye bye. Take care. Keep in touch. Bye bye. Ciao. Bye bye. Take care. Ciao, ma'am. Have a nice day, Bye bye. ma'am. Thank you. Same to you. Bye bye. May God bless all of you.